Welcome to my channel Somi's World. Welcome you to a new video. In previous videos we only spoke about what is healthy marriage and what is the components, how to keep marriage healthy, like respect, friendship, joy in small moments like this, and this all. So you can check previous video for details. So today I will discuss with you about some unhealthy signs we often ignore in marriages. What is healthy marriage and how to keep marriage healthy, that components I already discussed. In future I will discuss more about that. Now I want to discuss with you some unhealthy signs to understand that marriage is unhealthy. Actually in this video I want to you viewers identify emotional red flags or patterns you may have normalized, that in life you may have normalized that is okay, this can be happen, but that can be a red flag, that can be not unhealthy signs. So in this video I want to discuss about that topic, that's some unhealthy signs of relationship. So let's start. Today's topic is sensitive but important, because sometimes we call something normal in marriage when it's actually not normal and not healthy. So actually this happens because we are taught to adjust by our elders or family members. We are taught to adjust and stay quiet and to keep peace. So we always taught to adjust, stay quiet, keep peace. So we think that we should do that in every scenario, but that's not okay. Sometimes we need to speak. Being quiet is not okay always. In relationship, to keep peace, that's not one's duty. That's not, relationship means there is two person involved, so that is not one person's duty to keep quiet and keep peace. Keep peace is two persons duty. One person is doing unhealthy things for this relationship and another is being quiet and trying to keep peace. So no, that time चुप्पी तोड़ना पड़ता है. चुप रह के नहीं होता है सब कुछ, चुप्पी तोड़ना पड़ता है तब. Ignoring unhealthy signs only delays healing. Ignoring unhealthy signs only delays healing. It doesn't protect love. It can't protect your relationship. It can't. So here are some common patterns people silently suffer through, thinking it's just how marriage is, but these are red flags, not relationship rules. So, number one, walking on eggshells all the time. Walking on eggshells all the time. If you are constantly scared of your partner's reaction, if you filter every word so your partner don't snap, that's not respect, that's fear. That's totally fear. Respect is different thing. And love doesn't grow in fear. Love grows only in respect. Actually, a relationship's foundation is respect. So if there is fear, you need to filter your words. That is red flag or unhealthy sign. Point two. Point two is everything is always your fault. It means like if every fight ends with you apologizing even when you are hurt, that's emotional imbalance. A healthy marriage takes shared responsibility. Means like, obviously a healthy marriage takes shared responsibility. It not कि only financially shared or only house chores shared. मतलब जॉब में जाके जो पैसा कमा रहे हो फिनेंशियली, उसमें भी दोनों साथ मिलके मदद करो. हाउस कोर्स का जो भी है, बर्तन, घर साफ, मतलब जो भी घर का काम होता है, दैट ऑल्सो दोनों शेयर करो. इट्स नॉट कि 50-50, आधा से मतलब कोई 70 हो सकता है, कोई 30 हो सकता है. So emotion also should be shared. Like every time, if one partner is, if A and B two partner, and every time after fight is normal in relationship. I already told in previous video that is not a red sign. Normal fight is normal. So if after every fight A and B में B ही माफ़ी मांग रहे हैं, तो that is not okay. मतलब
हर वक्त एक कोई कैसे माफ़ी मांग सकता है, कभी इसका गलती होगा कभी इसका गलती होगा। तो दैट इज़ द थिंग, जब मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन है जिधर बी अगर दुखी है तब भी बी माफ़ी मांग रहा है, बी ने अगर ए का दिल दुखा है तब भी माफ़ी मांग रहा है, बी ही हर टाइम माफ़ी मांग रहा है। तो दैट इज़ अ रेड साइन कि उन लोग मतलब ये जो ए है पॉइंट वॉज कि दैट ऑलवेज योर फॉल्ट, ए विल ऑलवेज शो दैट टॉपिक कि तुम्हारा ही फॉल्ट है, कुछ भी हो घुमा फिरा के उस पर ही डाल देगा। दैट इज़ द सेकेंड अनहेल्दी साइन। Third is privacy. I already spoke about healthy boundaries is important components of healthy marriage. So unhealthy sign is couples privacy. I mean there's no privacy for and no couple space. That is third point. So obviously that is red sign. If relatives or friends dominate every decision, conversation or moment and your relationship feels exposed or secondary, that's a boundary issue, not family bonding. I already told, I said that on what is important component of healthy marriage, on that healthy boundary means that same topic this is that that is not family bonding कि हर टाइम आपका कपल स्पेस, अब दोनों साथ में वीकली एक बार भी बाहर जाएंगे दोनों मिल के, या दोनों मिल के घर में रूम में अकेले, मतलब अकेले मैंने बस दोनों वीकली वन टाइम एटलीस्ट आप लोग अगर बाहर जाएंगे या मूवी देखेंगे या कुछ भी एक्टिविटी करेंगे या साथ में खाना पकाएंगे, उसमें भी अगर दूसरे लोग को ये फील होगा कि आप लोग उनको अबंडन कर रहे हैं, क्यों साथ में नहीं ले रहे हैं उन लोगों को, अगर दोस्तों को ऐसा लगेगा कि हमको भी साथ में चलना है, फैमिली को लगेगा कि क्यों उन दोनों को साथ में कुक करना है, क्यों उन दोनों को साथ में मार्केट जाना है, क्यों उन दोनों को साथ में मूवी देखना है, या क्यों उन दोनों को साथ में वॉकिंग करना है। तो वीकली शायद आप एक ही बार ऐसा टाइम निकल रहा है आप दोनों के लिए, फिर भी अगर उन लोगों को ये फील हो रहा है तो दैट इज़ अनहेल्दी साइन। तो ऐसा नहीं कि आप फैमिली के साथ टाइम नहीं बिताएंगे, फ्रेंड्स के साथ टाइम नहीं बिताएंगे, पर जब फील हो रहा है एक दोनों में से किसी एक पार्टनर को कि कपल स्पेस हैम्पर हो रहा है, या रिलेशनशिप जो दोनों का है मैरिज, तो वो सेकेंडरी फील हो रहा है अगर दोनों में से किसी एक को, मतलब ऐसा फील हो रहा है उसको कि दूसरे पार्टनर के लिए फैमिली फ्रेंड्स पहले है एंड रिलेशनशिप सब कुछ हो जाने के बाद अगर थोड़ा सा टाइम बच जाए तो दैट टाइम इज़ फॉर रिलेशनशिप। तो दैट इज़ अनहेल्दी साइन कि ऐसा सोच आ रहा है मन में, तो उसको दबाओ मत, दूसरे पार्टनर से बात करो, क्योंकि दैट इज़ अनहेल्दी साइन। सो नेक्स्ट टॉपिक। सो फोर्थ पॉइंट इज यू फील इमोशनली ड्रेन्ड नॉट नरिश्ड। गॉट इट, यू फील इमोशनली ड्रेन्ड नॉट नरिश्ड, मतलब एक के बाद एक आ रहा है पॉइंट, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर एक के बाद एक आ रहा है। अगर एक दो तीन में मैंने जो पॉइंट बोला वो अगर हो रहा है तुम्हारे साथ, तो फोर्थ जो है इमोशनली ड्रेन तुम फील करोगे नॉर्मली। डू यू फील मोर लोनली विथ योर पार्टनर देन अलोन। जब अकेले होते हो उससे भी ज़्यादा लोनली पार्टनर के साथ रहते हुए वक्त फील करते हो क्या? अगर करते हो तो मतलब छोटा नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। योर स्पाउस शुड बी योर इमोशनल रिफिल, नॉट योर इमोशनल ड्रेन। मतलब पूरे दिन में जो थकान है, जो स्ट्रेस फील हुआ, एंग्जाइटी फील हुआ, जो भी हुआ उसका रिफिल होता है पार्टनर, मतलब उसके साथ जो क्वालिटी टाइम अकेले में मिलता है उससे रिफिल हो जाता है मेंटली। अगर ये नहीं हो रहा है तो, और अगर साथ में रहते वक्त रिफिल इमोशनल रिफिल नहीं हो रहा है और ऊपर से ऐसा लग रहा है कि और भी ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी लोनली फील हो रहा है, तो दैट इज़ अ बिग रेड फ्लैग एंड अनहेल्दी साइन। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट 5, यू कैन बी फुल्ली योर सेल्फ, यू कांट बी फुल्ली योर सेल्फ। देखना ये सारे पॉइंट्स ना रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। ये थोड़ा सा फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड नहीं है क्या कि वॉकिंग ऑन एक्सेल्स, तो एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब एक अनहेल्दी साइन आता है तो उसके साथ मतलब ये बंच ऑफ है, एक्चुअल में एक ही प्रॉब्लम है। अगर फैमिली बाउंड्री नहीं है तो इमोशनली ड्रेन फील होगा। अगर तुम फर्स्ट जो था पॉइंट कि वॉकिंग ऑन एक्सेल्स, कि तुम्हें अगर डर लग रहा है उसके सामने तुम अपना सेल्फ नहीं दिखा सकते, उसके साथ ये रिलेटेड है, यू कैन बी फुल्ली योर सेल्फ। नाउ पॉइंट 5, that is, if you are hiding your true thoughts, opinions, dreams, if your partner mocks, dismisses or controls who you are, that's not love, that's suppression. मतलब उसके सामने अगर तुम्हें तुम्हारा सपना कि तुम्हें कुछ बनना है,
कि वो नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम्हें ये फील होता है कि मैं अगर ये बोल दूँ कि मुझे ये बिज़नेस करना है या ये बनना है, तो वो मुझे मॉक कर देगा कि तेरे से तो ये काम हो ही नहीं सकता, तू ये कैसे करेगी, नहीं तो तुम्हारा ओपिनियन दिया तो बोला कि तुम्हारा ओपिनियन हमेशा गलत होता है। मतलब ऐसे अगर होता रहा है तो दैट इज़ बिग रेड साइन। मतलब पार्टनर एक ऐसे इंसान है इस दुनिया में जिसके सामने वन एंड ओनली वही एक इंसान है जिसके सामने हम लोग ट्रू थॉट्स रख सकते हैं। तो उसके सामने भी अगर नहीं रख सकते तो किसके सामने रखेंगे? एंड दैट इज़ रियली बिग नेगेटिव थिंग। मे बी if you spoke with him or try to solve that why this is happening, you need to ask that person, him or her, that why you are doing this. You should not keep quiet and think कि पीस तुम्हारा अकेले का जिम्मेदार है तो तुम चुप रह के पीस मेंटेन करो रिलेशनशिप में। नो, तुम बात करो कि क्यों तुम कर रहे हो भैया ऐसा, क्यों तुम मुझे मॉक कर रहे हो, क्यों तुम्हारे फैमिली फ्रेंड से तुम बाउंड्री नहीं रख सकते, क्यों मैं कुछ भी ओपिनियन दूँ उससे तुम्हें प्रॉब्लम है, क्यों मेरे ड्रीम्स फुलफिल करने में तुम मदद नहीं कर सकते, क्यों मुझे इमोशनली हील नहीं कर सकते। बात करो। Point 6 is if intimacy feels like duty, not a connection, then that is also a red flag. It is a emotional thing, not a duty. So if physical closeness feels forced, one-sided, or emotionally empty, it's time to talk. It's time to talk. Intimacy is not a marital duty, it's a shared emotional expression. मतलब ये अंदर से फील होना चाहिए, ये ड्यूटी समझ के नहीं करना चाहिए। ये बर्तन धोना नहीं है कि खाना पड़ेगा तो बर्तन धोना पड़ेगा। नो, इट्स अ इमोशनल थिंग। इफ़ नहीं हो रहा है तो बात करो कि आपका पार्टनर क्या सोचता है, क्या प्रॉब्लम है। बहुत कुछ रीज़न हो सकता है, आपसे गुस्सा हो सकता है, आपने कुछ उसको दिल दुखाया हो सकता है। बात करो, सॉल्व करो। पहले जो अनसॉल्व्ड इश्यूज़ है उसको बात करो। बात करने पे बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है। और फिर भी अगर सॉल्व नहीं हुआ तो किसी से हेल्प लो, बट हेल्प लेने से पहले दोनों बात करो। दोनों बात करने से मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो पहले तो बात करो, फिर उसके बाद हेल्प लेने का सोचना। हेल्प मतलब ऐसा नहीं कि मेरे से ही हेल्प लेना पड़ेगा, मेरे से भी ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो। बहुत फेमस कोई थेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हो बहुत सारे पैसे दे के। बट द थिंग इज़ कोई ज़रूरत नहीं होता है। पर हाँ, दैट्स ऑल्सो योर चॉइस। बट मोस्ट मैंडेटरी इज दोनों बैठ के अकेले रूम में क्लोज डोर में बात करो। कुछ भी प्रॉब्लम हो दोनों बात करो। ये सब जो भी मैंने बताया अभी तक, ये 6 पॉइंट्स सब कुछ अब भी ग्रेट फ्लैग्स है। इसमें से कुछ भी 1-2 है तो उसको मतलब चुप रह के मान ले के कि हर रिश्ते में चुप रहना पड़ता है, कुछ चीज़ें मानना पड़ता है। नो, ये 6 चीज़ों में एक भी मानने लायक नहीं है। तो दैट इज़ अ अनहेल्दी थिंग। रिलेशनशिप और नहीं हो रहा है अच्छे से, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है और रिलेशनशिप की तरफ से डील के तरफ जा रहा है। लाइक पहले भी मैंने बोला, मैं कुछ दूंगी, तुम कुछ दोगे, ये एक डील, हम दोनों साथ में रहेंगे, ज़िंदगी बिता लेंगे। बट गोल वो नहीं है ना, प्यार से साथ में रहना है, प्यार है, रिलेशनशिप है। तो उसके लिए ये 6 भी ग्रेट फ्लैग है। तो बात करो एक दूसरे से। अब जो 7th पॉइंट है, ऊपर का जो ये 6 है, ये अगर होगा लाइफ में तो 7th पॉइंट ऑटोमेटिकली आएगा कि योर मेंटल हेल्थ इज डिक्लाइनिंग इन द रिलेशनशिप। मेंटल हेल्थ तो ऊपर का जो मैंने 6 बोला, मतलब पहले का 6, तो वो 6 में से कोई भी एक होगा तो मेंटल हेल्थ तो डिक्लाइन ही होगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, ये अलग से पॉइंट बोलने की ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी समझाने के लिए ज़रूरत है। मतलब ये अलग से एक पॉइंट है ही नहीं, बाकी सारे पॉइंट्स अगर होंगे लाइफ में तो ये भी होगा। If you are more joyful, confident or free before marriage and now you feel small, anxious or hopeless, pause and reflect. Why? Marriage should add to you, not erase you. Marriage should add to you, not erase you. मैरिज में अगर मैंने पहले भी बोला, तुम अगर डे टू डे ग्रो नहीं कर रहे हो, ब्लूम नहीं हो रहे हो, अगर ये फील हो रहा है कि पहले मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, मतलब खिलता हुआ फूल जैसा थी, अब मुरझाए हुए फूल बन रही हो, तो प्रॉब्लम है। और पहले का मैंने जो बोला कि अपना
जो सपना है, ओपिनियन है पार्टनर से नहीं बोल पाना, उससे डर होना कि उसको बोलेंगे तो मॉक करेगा, फैमिली बाउंड्रीज नहीं होना, वो आप एक दूसरे को मदद नहीं करना लाइफ में, तो बहुत सारे ऐसे रेड साइन होते हैं। तो अगर ये अनहेल्दी साइंस रहेंगे तो मेंटल जो ये डिक्लाइन हो रहा है ये होगा। तो इसको पहले बाकी सारी चीज़ों को सॉल्व करना है, रिलेशनशिप कैसा है, क्यों कुछ प्रॉब्लम है, उसमें वर्क करना है। ऐसा नहीं कि उसको टाल देना है कि ये गलती हो गई, इसमें मिट्टी डाल दिया, हो गया, बात खत्म। नहीं, उस टॉपिक में दोनों को बात करना है और उस टॉपिक को सॉल्व करना है। तो फिर ये जो मेंटल हेल्थ का जो डिक्लाइन हो रहा है, मतलब फूल एक खिलता हुआ फूल मुरझा रहा है, ये नहीं होगा, ये और भी ज़्यादा खिलता हुआ हो, मतलब ऐसा होगा। अच्छे मैरिज में ऐसा ही होता है कि दोनों और ज़्यादा ग्रो करते हैं, दोनों के चेहरे में चमक और ज़्यादा हो जाता है। और ये मतलब डरना मत कि ये साइंस अगर है तुम्हारे मैरिज में कि तुम्हारा मैरिज फेलियर है, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ये सारे साइंस को तुम पॉइंट आउट करके उस पर काम कर सकते हो, इसलिए पॉइंट आउट करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये सारे साइंस तुमने पॉइंट आउट कर लिए तो तुम्हारा मैरिज खत्म है, ऐसा नहीं है। Recognizing this science doesn't mean your marriage is over. It means you are waking up, you are becoming aware, and awareness is the first step to change. Many couples go through these patterns. What matters is, are both willing to reflect, talk, and rebuild together? That is the main thing. मतलब अगर ये सारे साइंस है तो फिर भी मैरिज अच्छा हो सकता है। ये सारे साइंस पे बैठ के बात करो, हो सकता है कि उसके अनजाने में, मतलब उसने ध्यान ही नहीं दिया, ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है उसके तरफ से, तो तुम्हें नोटिस हुआ, तुम बात करो, दोनों मिलके बात करो। बात करने के बाद दोनों मिलके इस चीज को सॉल्व करो। तो अगर ये हो रहा है तो सॉल्व, मतलब ये तुम बात कर पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो, तो दैट गोना बी हेल्दी, मतलब ट्रांजिशन होगा, चेंज होगा। पर अगर प्रॉब्लम तब आता है कि आप बात ही नहीं कर सकते, या आप बात करोगे तो दूसरे पार्टनर जो है वो आपको मानेंगे ही नहीं, तो तब प्रॉब्लम आएगा कि नहीं हो सकता कुछ, मैरिज ओवर के टाइप कुछ। बट अगर पार्टनर आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है, चेंज हो रहा है दोनों के बीच, मतलब दोनों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम था, तो दोनों मिलकर चेंज कर रहे हो, बात कर रहे हो कि ये मुझे बोलना है, ये मुझे बोलना है, फिर दोनों मिलकर चेंजेस ला रहे हो। अगर ये ओपन है कि हाँ हम बात कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। So this was unhealthy signs and some red flags you need to identify and need to work on this. So on next video I'm gonna create about how to rebuild a marriage that's emotionally drifting. Means इसमें जो unhealthy signs और red signals दिखे, उससे कैसे emotionally मतलब कैसे उसको ठीक करना है, उस चीज़ को, उस पर ही नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके, तो और दोनों हर टाइम मैं एक ही बात बोलती हूँ, इस वीडियो में बोल रही हूँ, नेक्स्ट में भी सेम बात ये तो रहेगा ही कि दोनों को समझना पड़ेगा कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कि एक समझे तो उससे नहीं होगा, दोनों को करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा। एक करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये रिश्ता को सुधारना है, इस रिश्ते को और अच्छा बनाना है, और इस रिश्ते को और जो अच्छा है उसको अच्छे से ही मेंटेन करना है। तो रिश्ते में कौन है? दो है, तो एक कैसे ठीक कर सकता है अगर खराब हुआ है कुछ, और अगर सही है तो दोनों मिलके ही उसको सही रखे होंगे, और दोनों मिलके ही आगे सही रखना होगा। तो दोनों को ही साथ मिलके जो भी करना होगा। तो क्या और कैसे करना होगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। टिल देन बी हैप्पी, कीप अदर्स हैप्पी, keep your marriage healthy, keep working on your marriage. Okay, goodbye.